ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे। श्लोक नंबर 449। यत्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापम् उल्बणम् सुप्तोत्थितस्य किं तस्यात् स्वर्गाय नरकाय वा। Once more. यत्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापमुल्बणम् सुप्तोत्थितस्य किं तत्स्यात् स्वर्गाय नरकाय वा। Beautiful sloka. What does it mean? स्वप्न वेलायाम यत् पुण्यम वा उल्बणम पापम कृतम सुप्त उत्थितस्य तत् किम स्वर्गाय नरकाय वा स्यात्। स्वप्न वेलायाम, when we were dreaming, सोने के बाद जब स्वप्न देखते हैं, यत् पुण्य कर्म, जो पुण्य कर्म, वा उल्बणम, उल्बणम मतलब भयंकर, टेरिबल, पापम कृतम, any sinful act, any dreadly sinful act has been done, supta uthitasya, whenever you wake up from your sleep, tat kim swargaya narakaya vasyat, that may not be the cause of your heaven or hell. In dream, so many dream comes. Only a few we can remember after the waking up. In that dream, not always Dan, Dakshina, Tirtha happens. So many things happen. But it doesn't cause you heaven and hell when we wake up from the sleep. स्वप्न के अंदर मैं अच्छा काम भी कर सकता है और कोई पाप कर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर बहुत अच्छा काम किया तो जागने के बाद मेरा स्वर्गवास नहीं होगा, और स्वप्न में बहुत पाप किया है तो उसके लिए जागे हुए अवस्था में नरकवास नहीं होता, ये शास्त्र कह रहा है। होली मां श्री शारदा देवी ने बताया, कोलिते मोनेर पाप पाप ना, इन दिस कली युग mental sin is not the sin. And Vivek Chudamani also is telling the same. Likewise, whenever we get the establishment in knowledge, self-knowledge, the knowledge of oneness, then our all cumulative
good karma phal or sinful karma phal, nothing remains. There is no reward for the punya karma, merits, and there is no punishment for the sinful act. जैसे स्वप्न में कुछ भी करो, जागे हुए व्यक्ति को जागने के बाद अगर स्वप्न याद रहे तो थोड़ा 10-15 मिनट कुछ फीलिंग होता है, नहीं तो बस ऐसे ही ज्ञान होने के बाद अज्ञान अवस्था में जो कुछ किया है सारे संचित कर्म की फल नष्ट हो जाता है। वो संचित कर्म का फल मुझे भुगतना नहीं पड़ेगा। सिर्फ ज्ञान होने से ही संचित कर्म, द enormous fixed deposit investment of my sanchita karma gets destroyed. In the previous verse, Bhagavan Shankaracharya ji asserted that on waking to the higher plane of consciousness, all the vasanas that have been created, sanchita karma means vasana, my enormous, terrible desire, सुबह से रात तक मैं जो दौड़ रहा हूं, सिर्फ वासना की दासत्य करने, वासना मुझे दौड़ा रहा है सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो राजा को चाहे वो प्रजा को, सब। All the vasanas that have been created in the past are totally wiped out. They become impotent and can no longer yield any results. All the results of actions done in the past accrued to the personality through the endless lives that have already been lived are called sanchita karma. In order to drive home the point, the example is given which amplifies contentions of Vedanta. The illustration given in the verse is very effective. So, whatever activities have been done during the dream state of consciousness, swapna avastha, irrespective of their merits and demerits, papa or punya, cannot have any reaction after the individual has woken up. The good actions of the dream cannot give one extra happiness on awakening, nor can the crimes perpetrated in the dream give one consequent sorrows in his state of awakening. In short, between the two states of consciousness, there cannot be any transaction. For the subjects that experience the two states of consciousness are totally different,
The waker as the waker is not available in the dream, and the dreamer as the dreamer is not there to experience the waking. स्वप्न पुरुष जागे हुई अवस्था में नहीं रहता, और जागे हुए पुरुष स्वप्न अवस्था में नहीं रहते. In the same way, the egocentric individuality must have performed innumerable actions in his pilgrimage from one form to another. Yet now that the ego has ended in his new-found experience of the infinite consciousness as his own true nature, none of these fruits of actions, karma phala, can ever affect him, because the doer of those actions is not available anymore. Sloka number 450. स्वमसङ्गमुदासीनं परिज्ञाय नभो यथा न श्लिष्यति च यत्किञ्चित् कदाचिद् भावि कर्मभिः. स्वमसङ्गमुदासीनं परिज्ञाय नभो यथा न श्लिष्यति च यत्किञ्चित् कदाचिद् भावि कर्मभिः. Continuation. विद्वान व्यक्ति स्वम मतलब आत्मा को यथा नभः, ये आकाश जैसे असंगम मतलब आसक्ति शून्य, उदासीनम निर्लिप्त, परिज्ञाय जानने के बाद, कदाचित कभी भी, भावी कर्म भी आगामी होने वाला कर्म समूह के द्वारा यत किंचित थोड़ा सा भी न श्लिष्यति लिप्त नहीं. आत्मज्ञ पुरुष जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा सदा आसक्ति शून्य है, निर्लिप्त है, किसी के साथ कोई संग नहीं, चाहे वो कुछ भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो. तो ज्ञान होने के बाद कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी वस्तु आ जाए, व्यक्ति आ जाए, उनका कुछ फिक्र नहीं, बिकॉज ही इज आकाशवत. तो कोई बोलते थे मैं तो ख हूं. ख के मतलब आकाश. इसीलिए तो पक्षी का और एक नाम है खेचर, आकाश में जो चरती. खाते चरती खेचर. So being unattached and indifferent like sky,
One who is realized is never concerned in the least about actions yet to be performed in the future. पहले बोला है कि ज्ञानी व्यक्ति की संचित कर्म नहीं रहता। अभी बोल रहा है कि ये ज्ञानी व्यक्ति आगामी कर्म के साथ भी लिप्त नहीं होता। संचित कर्म तो हो गया, पास्ट कर्म फल। आगामी कर्म फल मीन्स भविष्य में जो होने वाला। जिन्होंने ज्ञान लाभ किया है उन्होंने खुद को कैसे देखते हैं? असंगोहम, असंगोहम, असंगोहम निरंजनः स्वम असंगम उदासीनम। मैं असंग हूं, मैं कोई कर्म का करता नहीं, तो कोई भी कर्म फल मेरा नहीं। मैं उदासीन हूं, मैं मेरा वासना पूर्ण करने के लिए कुछ भी नहीं करते। मेरा कोई वासना नहीं है, किसी से मैं जोड़ते नहीं, लिप्त नहीं होता हूं। आई एम नॉट अटैच्ड विथ एनीथिंग एल्स। आई एम इंडिफरेंट, आई एम उदासीन। नभः जथा, आकाश जैसे। आकाश सब में है लेकिन किसी के साथ लिप्त नहीं, जुड़े हुए नहीं, अटैच्ड नहीं। कोई भी व्यक्ति वस्तु आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। जिनका आत्मज्ञान हुआ है, द मैन ऑफ रियलाइजेशन इज लाइक दैट। तब वो न श्लिष्यति भावी कर्म भी। ज्ञान होने के बाद जितना भी कर्म करेंगे, जितना भी, उस कर्म का फल उनके ऊपर नहीं आएगा, उसके साथ संश्लिष्ट नहीं रहेंगे। उनका कोई वासना भी नहीं है, इसीलिए वो संश्लिष्ट नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, अटैच्ड नहीं है, इमोशनल नहीं है। अगर एक्सीडेंटली उनके द्वारा, एक्सीडेंटली किसी को नुकसान भी पहुंच जाए, उसका फल भी उनके ऊपर नहीं आएगा। देश की आइन उनको सजा दे सकता है, जेल भेज सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट is as it is in the temple and in the jail is same। क्योंकि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर और सफरर, ऐसे अहं बुद्धि उनका नहीं। लेकिन बात यह है जिनका ज्ञान हो गया है उनके द्वारा किसी का अनिष्ट नहीं होता। ये तो सच बात है, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। शास्त्र ने बोल रहा है अगर एक्सीडेंटली थोड़ा सा भी कुछ हो जा गया तब भी वो उदासीन है। क्योंकि देखिए, हम लोग नॉन वायलेंट हो सकता है, लेकिन हम लोग जब चल रहा है कितना कुछ मर रहा है। जब सांस प्रश्वास लेते कितना कुछ जो माइक्रोस्कोपिक है, उनका भी तो प्राण है, उनका भी तो हत्या होता है।
जो पेड़ काट के हम लोग खाते हैं, पेड़ का प्राण नहीं है। ये धान चाल गेहूं कैसे आता है? पेड़ पौधा को काट कर ही तो आता है। ये भी तो हिंसा ही है। उदासीन, आकाश जैसे निर्लिप्त। पहले श्लोक में संचित कर्म की बात बोले थे, अभी आगामी कर्म की बात बोल रहा है। भविष्य की कर्म भी उनका नहीं रहेगा। भविष्य कर्म के साथ उनका कोई संग नहीं। दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ शास्त्र। Hope the teacher wants to emphasize that the vasanas accumulated in the past are destroyed. Not only that, but as a result of realization, all the vasanas that are to mature in the future and yield their results in terms of joys and sorrows are also totally destroyed. On realizing the self, which is unattached and indifferent to the activities taking place around, the seeker's contact with the past is so completely annihilated that even the immature vasanas waiting for expression get totally roasted, exhausted in the fire of knowledge newly kindled by the seeker's realization. The Atma, the individual self, is described as being indifferent. This is to indicate that in its presence, all the activities take place, but in none of the activities it is involved. In its presence, the matter vestures gather dynamism to act, but the vehicles always act according to their vasana. काल भी जो बोल रहे थे कि गाड़ी बंद होने के बाद भी गाड़ी चलते विद इट्स मोमेंटम, लेकिन उसमें ना तो बैटरी ना तो पेट्रोल, किसी का कुछ खर्च नहीं। When a man of realization acts, he is not affected at all at any time by the vasanas yet to mature in the future, means agami karma. Bhagavan Shankaracharya ji, it is calling bhavi karma, actions that are yet to yield their fruits in future periods of time. In short, karma is done by the ego, and the ego alone can get its reward or punishment. जो काम करता है उसी का ही पुरस्कार या तिरस्कार मिलता है। Ego performs everything else. That's why ego gets reward, praisings, mala, khada. Sikkim is used khada. As Bengal, in Bengal we use garland. When the doer of actions, the vain ego,
has been totally sublimated. Who is to receive the results? पुरस्कार दे रहे हैं लेकिन लेने वाला नहीं है, कौन लेगा? तिरस्कार करने वाला है, कर रहे हो लेकिन नहीं है। भगवान बुद्ध भिक्षा करने गया, जवान थे, एक व्यक्ति इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, इतना थाम ही नहीं रहा है, चुप नहीं हो रहा है। और बुद्धदेव निर्विकार, विथ अ स्माइलिंग फेस। और ये देखकर और गुस्सा आ जा रहा है, अरे भाई मैं इतना कुछ बोल रहा हूं, थोड़ा तो रिएक्शन दो। गाली देने वाला थक गया, बोला अरे भाई क्या हुआ? बोला आप भिक्षा दे रहे हैं मुझे कुछ, लेकिन मैं नहीं लिया, तो किसके पास रहेगा? ये बुर्बाक की तरह सवाल मत करो, ये मेरे पास ही रहेगा। तो आप जितना गाली दे रहे हैं वो मैं नहीं ले रहा हूं, तो किसके पास रहेगा? When the ego is no more, the result of the karma done by the ego cannot take effect, and therefore no agami can function. That's the beauty of that thing. Nanabho घट योगेन सुरागंधेन लिप्यते तथात्मोपाधि योगेन तद्धर्मैर्नैव लिप्यते। ननभो घट योगेन सुरागंधेन लिप्यते तथात्मोपाधि योगेन तद्धर्मैर्नैव लिप्यते। The sky, because of its contact with the jar, pot, is not affected by the smell of the liquor in it. Likewise, the Atma is not affected by the properties, the conditionings, because of its contact with them. नभः आकाश घट योगेन, contact with the jar or pot, सुरागंधेन, घट में, पहले जमाने में तो बॉटल नहीं था, लकड़ी का बना हुआ या मिट्टी का बना हुआ, उसमें सुरा रखते थे। तो घट योगेन सुरागंधेन न लिप्यते। The space is not afflicted by the smell of the alcohol. Likewise, tatha आत्मा उपाधि योगेन तत्कर्मः न एव लिप्यते। आत्मा जब उपाधि के साथ योग हो रहा है, ब्रह्मचारी दिवाकर चैतन्य इंचार्ज ऑफ ये प्लेस डिड सो मेनी थिंग्स, ये सारे उपाधि है। सो उपाधि योगेन, आत्मा जब शरीर मन बुद्धि ये सब उपाधि के साथ जोड़ जाते हैं, तत्कर्म मतलब
उसके द्वारा जब कर्म होता है तब कर्तृत्व आता है, भोक्तृत्व आता है, उसके लिए सुख आता है, दुख आता है। ये सारे सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब उपाधि में जाता है। न एव लिप्यते, आत्मा कभी लिप्त नहीं होता। एक मिट्टी के बर्तन में दारू रखा था, वो दारू दूसरे मिट्टी के बर्तन में रख दिया, तो थोड़ा सा खुशबू या बदबू, जो पीना पसंद करते उसके लिए दारू खुशबूदार है, जो पीना पसंद नहीं करते उसके लिए दारू बदबूदार है। तो जो भी है उसका स्मेल बॉटल में रह जाते हैं, लेकिन बॉटल का जो स्पेस है इट इज अनएफ्लिक्टेड। न नभः घट योगेन सुरागंधेन लिप्यते। घटाकाश, घट के अंदर जो आकाश है, आकाश में कोई गंध कभी नहीं रहता। एक वस्तु के साथ दूसरा वस्तु के संस्पर्श में स्मेल आता है। मिट्टी का जो घट है, पात्र है, बर्तन है, जब उस मिट्टी के साथ सूरा की संयोग होता है तब उसका स्मेल आ सकता है। लेकिन उस बर्तन के अंदर जो आकाश है, द स्पेस, उसमें कोई ना तो खुशबू ना तो बदबू। द मैन ऑफ रियलाइजेशन, ज्ञानी व्यक्ति ऐसे ही बोलते कि मैं जैसे आकाश हूं, आकाश जैसे हूं, मैं उदासीन हूं, मैं असंग हूं, मैं किसी चीज में लिप्त नहीं होता। सूरा वर्तन में था, जैसे बर्तन की आकाश में कोई खुशबू बदबू नहीं था, ऐसे ही उपाधि के संयोग रहने से भी आत्मा में कभी उपाधि धर्म नहीं आता। तथा आत्मा उपाधि योगेन तद धर्म ही न एव लिप्यते। आत्मा निरुपाधिक है, आत्मा की कोई उपाधि नहीं, आत्मा उदासीन है, साक्षी स्वरूप है, निर्गुण है, निराकार है, निरुपाधिक है। उपाधि का धर्म क्या है? कर्ता, अहम कर्ता, मैं करता हूं, अहम भोक्ता, ये भाव, सुख दुख के अनुभूति में अच्छा लगना या बुरा लगना, ये सब अहंकार की लगता है। आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं। फैन खराब हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाए, एसी खराब हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कभी खराब नहीं होता। सप्लाई कुछ खराब हो सकता है। उपाधि धर्म कभी आत्मा को स्पर्श नहीं करते। दैट्स द all our activities are called karma. Karma is of three types. It is classified with reference to the past, present, and future. The total impressions gained by an individual through his activities and thoughts accumulated at the unconscious level of the mind are called sanchita, acquired karma. The large number of vasanas, desires within is all sanchita karma.
Of them, a few become fructified and surge forth to express. They are called prarabdha karma. In last 2 days we are discussing that which has started yielding fruits, that is prarabdha. There are yet other vasanas which are awaiting maturity. They are yet to become the effective. Such vasanas are called agami, yet to come. The sanchita which is acquired in the past and the agami which is yet to come, both are destroyed at the moment of realization. They can no longer affect the individual because he has transcended his little identification and has experienced the bliss beyond. The individuality which is to be accused for the past karma is no more in that equipment. It has dissolved itself in the transcendental experience of the infinitude. In order to explain to us how the karmas do not affect the realized one, the teacher gives this example. Space is present everywhere. The contents in the space can never contaminate the space. Toddy pot may contaminate the surrounding atmosphere, the air, but not the space. The space in the pot cannot be conditioned by the contents of the pot. Similarly, even though a realized man lives in the body cannot condition that realized soul, the jnani. At all time, that jnani is conscious of his oneness with the infinitude. He being subtler than the subtlest, he cannot be conditioned by the vasanas of his past actions. But this body being prarabdha, that which is the result of past actions, which have already started yielding fruits, has to continue existing till it exhausts itself by itself. That is why ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर जीवित रहता है. प्रारब्ध खत्म होने से ही इस शरीर का मृत्यु होता है, व्यक्ति का नहीं. हरि ओम तत्सत.